دیکھیں میں نے 2017 میں ایک کمپنی میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر تھا اور وہاں پر میری سیلری تھی اراؤنڈ 1,30,000 روپے. 2020 میں نے جاب کو ریزائن کر کے پوری طرح سے میں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا. 1,30,000 والی کمی یہ پوری کر رہے ہیں آپ کی؟ بلیو کریں کہ اس ٹائم پہ میں صرف 1,30,000 کی سیلری تھی, میرے پاس سیونگ کچھ نہیں تھی. صحیح ہے. میں نے جاب کو ریزائن کیا, بڑی کرٹیسزم آئی پیرنٹس کی طرف سے کہ اچھی جاب چھوڑ کے آپ جو ادھر آ رہے ہیں. بالکل. اس وقت اگر میں بات کروں تو الحمدللہ گاؤں میں سب سے اچھا گھر میرا ہے. اچھا. جو کہ اس وقت 2 کمرے کچن بات, یہ ہمارے گاؤں کا جو ٹرینڈ تھا وہ تھا خرگوشوں سے. اس سے پہلے نہ وہ پلستر ہو سکتے تھے. اچھا. سیلری آئی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, جو ہے وہ اس کا بریڈر پہ 1,40,000. اور یہ کون سی ہے؟ جی یہ میٹ بریڈ ہے, اس کو چنچلا بریڈ بولتے ہیں. ماشاءاللہ اس نے 8 بچے دیے ہوئے ہیں. اچھا یہ سارے مختلف کلر کے ہیں ایسا؟ اچھا چل رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کا 7-8 سال کا ایکسپیرینس ہے. جی آپ بریڈنگ بھی کروا رہے ہیں, بیچ بھی رہے ہیں. ہم آپ سے ایک ایک کر کے ساری چیزیں پوچھیں گے کہ ان کی ہاؤسنگ کیسے ہے, ہاؤسنگ سستی اور اچھی ہاؤسنگ کون سی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیکیشن آسان اور سستی میڈیکیشن کون سی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خوراک آگے دیکھیں رکھنے کو کوئی بھی بتا دیتا ہے یہ چیز ڈالیں یہ چیز ڈالیں. صحیح ہے. آپ نے ہمیں بتانا ہے جو افورڈیبل ہو, اچھی اور سستی خوراک ہو جو ہر بندہ مینج کر سکے اور اس سے منافع بھی کما سکے. مگر ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ دن پہلے میں نے ریبٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو شیئر کی. ٹھیک ہے. بڑا اچھا فیڈ بیک اس سینس میں تھا کہ تقریباً 9 لاکھ بندے اور ملین کے قریب اس ویڈیو کو لوگ دیکھ چکے. اگر نیچے میں اس کے کمنٹس پڑھتا ہوں نا, آلموسٹ 100% ایک ہی ٹائپ کے کسٹمر ہے. ہر بندہ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ خرگوش بکتا نہیں. ٹھیک ہے. کھاتا کوئی نہیں ہے, ہم سیل اسے کہاں پر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس لیے میں نے شروع میں ہی پوچھا کہ آپ نے کتنے بیچے اور کن کو بیچے. آپ یہ پہلے بتائیں, باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں. بالکل. رکھیں گے کیسے, پہلے تو بندے کو یہ ہونا کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں وہ پروڈکٹ بکے گا کہاں بکے گا, کیسے بکے گا, عام بندہ اس کو کیسے لے سکتا ہے. مجھ سے اگر پوچھے نا آنیسٹلی, میں نے خرگوش کی کوئی دکان نہیں دیکھی, کسی کو خریدتے نہیں دیکھا, کسی کو کھاتے نہیں دیکھا. اچھا اس میں مذہبی بھی بہت ساری نیچے ہیں. کوئی کہتا ہے مکروہ ہے, کوئی کہتا ہے حرام ہے, کوئی کہتا ہے جائز ہے, اس کا لذیذ گوشت ہے, ٹیسٹی ہے, شوق کے لیے بڑا پیارا ہے, گھر میں رکھ سکتے ہیں. اور دیسی خرگوش کی بنسبت یہ کھڈے وڈے بھی نہیں کرتا. تو مختلف ہیں, مگر سیل کا سب سے نا ہر بندے کا یہی کوشچن کہ یہ بکتا ہی نہیں, یہ فلوپ ہے. تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. آج مطلب آپ کا یہ سوال اتنے بہترین انداز سے آنسر کیا جائے گا کہ کوئی اس کے بعد یہ نہیں بولے گا کہ یہ بکتا نہیں ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں پاکستان میں ایک بڑی سمپل سی تھیوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو چیز بک نہیں رہی ہوگی وہ وافر مقدار میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اگر خرگوش کھانا ہے آپ کو مل جاتا ہے ایزیلی, نہیں آپ کو دکان پہ بھی نہیں مل رہا, آپ کو کہیں یا کسی نہ کسی آن لائن سورس سے لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بکتا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے دائیں بائیں تو خرگوش ہی ہونے چاہیے. ہر بندے نے رکھا ہوا ہے, بک نہیں رہا تو وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے چیز, پڑی بھی ہوگی. لیکن دوسرا اگر سینیریو دیکھا جائے تو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہے دیٹ مینز کہ وہ اس کی قلت زیادہ ہے اور وہ پروڈکشن آ رہی ہے لیکن پورا نہیں ہو رہا. نہیں, اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے شارٹ یا نظر نہ آنے کی, کیونکہ بندے اس کی فارمنگ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ 172 فارمز جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مگر میرے پاس 300 کا بریڈر کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اگر مجھ سے بھی خرگوش کھانے کے لیے چاہیے تو اویلیبل نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو رینڈم آرڈرز آتے ہیں کہ سمپلی کسی نے پارٹی کی ہے, کسی نے دوسرے تیسری جگہ پہ خرگوش کھانا ہے تو اس نے اگر 20-25 کلو منگوا لیا ہے تو ہم اگر 200 بریڈرز کا سیٹ اپ دیٹ مینز کہ 25 لاکھ روپے کا یہ سیٹ اپ ہے. اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ اپنے شہر کی ایک چھوٹا سے ڈھابے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. یہ ہے اس کا ایریا آف امپرومنٹ جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ فارمنگ اس سینس میں صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بک نہیں رہا, اس وجہ سے فارمنگ نہیں کرتے. جبکہ اگر وہ دائیں بائیں دیکھیں, ایک بندہ اپنے گھر کے اندر 10 خرگوش رکھتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, میری فیملی اس وقت میرے گاؤں کے اندر اراؤنڈ جو ہے ہم لوگ 20 گھر ہیں. ٹھیک ہو گیا. میرے فارم کی جو کنزپشن ہے وہ صرف میرے اپنے خاندان میں جاتی ہے. اچھا. اس لیے میری والدہ ہیں, میرے والد صاحب ہیں, تو جو اگر میں کہوں کہ 20 سے 30 خرگوشوں کی جو کنزپشن ہے وہ تو میرا اپنا گھر ہے سب سے پہلے, کیونکہ صحت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد میری فیملی ساری افورڈنگ ہے تو وہ لوگ اب مرغی نہیں کھاتے,
खरगोश खाते हैं। खरगोश खाते हैं। सिंपली उनको जब जरूरत पड़ता है वो कॉल कर देते हैं, भाई इतना 2 किलो 3 किलो भिजवा दो, इधर से लड़का ज़िबा करता है, घर भेज देता है। तो यहाँ पे 300 ब्रीडर का सेटअप लगा हुआ है, तो सिर्फ मैं अपने गांव के 20 घरों को खरगोश दे सकता हूँ। नहीं, अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और सवाल आ गया। आप कहते हैं कि 300 ब्रीडर का सेटअप है, आपके गांव की आबादी कितनी है? 2000, 3000, 4000 तकरीबन इतनी है। इतनी आबादी है, तो इनकी मैंने तो सुना है ये बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत ज्यादा फिर देते ये हैं। मतलब 2000 बंदे पे 300 ब्रीडर, फिर तो इतने बच्चे नहीं देते हैं। देखें, आप इसको जब डिवाइड करते हैं कि एक घर की जरूरत है, एक घर जो है महीने में अगर 4 दफा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 दफा गोश्त पकाता है, ठीक है, और अगर वो 2 किलो गोश्त 1 किलो ही कर लें, ठीक है, 6 किलो गोश्त आपका महीने का बन गया। 6 किलो गोश्त के लिए पीछे आपको 12 खरगोश चाहिए हैं। एक घर अगर एक महीने में 12 खरगोश खाता है, और वो अगर 20 घर हैं, मतलब एक पेयर तो आपके घर गांव में लेट से 300 घर है, एक पेयर के बच्चे तो एक घर ही खा रहे हैं। एक घर खा रहा है। सही है। अब मैं अगर घर के 20 मेरे घर के बंदे हैं, तो 20 लोग अगर वो परचेजिंग करते हैं, तो आपका ये जो 100 खरगोश का या 50 का सेटअप लगा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक ठाक बनती है, 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बनती है। नहीं तो एक आप बंदा फिर 20 लाख की, मुझे नहीं समझ आता 20 लाख के कितने बंदे अफोर्ड कर सकते हैं? 20 लाख का सेटअप लगाने से छोटे पैमाने पे किस तरह से ऊपर लेके जाए? सस्ता आम सा तरीका बताएं जो हर बंदा कर सके। सिंपल सा है। मतलब मैं पिंडी की बहुत सारी खवातीन ये कर रही हैं, और ये उनका मैं आपको बता देता हूँ। अब वो छोटी छोटी फैमिली है, उन्होंने 2-2, 3-3 पेयर रखे हुए हैं। ठीक है। उनकी जो फीमेल्स आ रही हैं वो अपने पास उनको दोबारा प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रही हैं। ठीक है। जो मेल रैबिट है उसको वो अपने साथ ही ज़िबा के लिए यूज कर रही है। अच्छा, सही है। अच्छा, आपको माशाल्लाह से 8 साल हो गए जी। थोड़ा सा पर्सनल सवाल है मगर जरूरी है नए फार्मर्स के लिए। ठीक है। 8 साल से आपका सोर्स ऑफ इनकम यही है या कुछ और है? देखिए, मैंने 2017 में मैं एक कंपनी में एज ए मार्केटिंग मैनेजर था, और वहाँ पर मेरी सैलरी थी अराउंड 1,30,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी थी, और कंपनी की गाड़ी, सारी चीजें कंपनी की तरफ से थी। सही है। जब कोरोना आया, सब लोग घर में बैठ गए और पाकिस्तानियों के दिमाग चलना शुरू हुए हैं वहाँ पे। ठीक है। उसी दौरान हमारा भी चला है, तो मैंने शिफ्ट किया खरगोश फार्मिंग की तरफ। सही है। क्योंकि दुबई भी टाइम लगा के आए हुए थे, तो दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार परदेश गुजारा पे तो आप शाने हैं माशाल्लाह जी। जो परदेश से आते हैं वो समझदार हो जाते हैं। तो वहाँ जब हमने देखा कि ओवरऑल हमारे जो हमसाया मालिक हैं वहाँ पे ये क्या हो रहा है, सही है, तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड आपकी अरब में बहुत ज्यादा है, खाते हैं लोग। तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट था कि ये अगर पाकिस्तान में नहीं बिकेगा तो दुबई में तो ये बिकेगा। हिरन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे महंगा गोश्त इसका है। ठीक है। तो हमने फिर इसको कमर्शलाइज स्टार्ट किया, कमर्शियल लेवल पे बनाने का सोचा। ठीक है। तो पाकिस्तान मैंने जॉब को रिजाइन किया, बड़ी क्रिटिसिज्म आई पेरेंट्स की तरफ से कि वेल अच्छी जॉब छोड़ के आप जो इधर आ रहे हैं। लेकिन एक शौक था कि नहीं यार, जॉब बिजनेस करना है तो इसमें आते हैं। तो 100% मैंने 2020 में मैंने जॉब को रिजाइन करके पूरी तरह से मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। 1,30,000 वाली कमी ये पूरी कर रहे हैं आपकी? बिलीव करें कि उस टाइम पे मैं सिर्फ 1,30,000 की सैलरी थी, मेरे पास सेविंग कुछ नहीं थी। सही है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव में सबसे अच्छा घर मेरा है। अच्छा, जो कि उस वक्त 2 कमरे किचन बात, ये हमारे गांव का जो ट्रेंड था वो था खरगोशों से। उससे पहले ना वो प्लस्तर हो सकते थे। अच्छा। सैलरी आई, खत्म हो गई। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सेविंग्स में अकाउंट भी अच्छा स्टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर फार्म की बर्थ की बात करूं तो अराउंड जो है वो इस वक्त 70 से 1 करोड़ रुपए की वैल्यू में ये फार्म है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं पूरी बर्थ की बात करूं तो वो सारा आपने इन्हीं से बनाया? टोटल ये 2020 से 2024 का सफर है। अच्छा। उस वक्त ये 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था। सही है। आज ये इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। 172 लोग जो हैं वो ब्रांचेस की शक्ल में कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की ये पहली कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड फार्म है। अच्छा। एक्सपोर्ट लेवल पे मामलात हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के अलावा अरब कंट्रीज में, यहाँ से गल्फ में जा रहे हैं? नहीं, अभी इस वजह से नहीं जा रहा कि अभी हम अपने गांव के 20 घरों को पूरा करने में दुश्वारी है, तो उधर तो कंटेनर का माल देना है। मार्केट है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है। अच्छा, कोई बंदा अगर केज से हट के घर में खुले ओपन रखता है, 2-3 फीमेल है, एक साथ मेल छोड़ देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है? रख सकते हैं आसानी के साथ? जी रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट आपकी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। ज़ाहिर है ये जितने एरिया में घूमेगा उतने एरिया में ये स्टूल करेगा, उतने एरिया में यूरिन करेगा।
ज्यादा एरिया आपको साफ करना पड़ेगा। चले, सफाई का मामला हो गया, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 10 फीमेल है, 2 मेल घूम रहे हैं तो आपस में लड़ाई या क्रॉसिंग का कोई ऐसा कुछ भी नहीं, इशू नहीं, कुछ भी नहीं। क्रॉस होंगे, सिर्फ अपने अपने मैनेजमेंट बच्चे लेवल पे देंगे। प्रॉब्लम आती है कि जैसा कि अब कोई डर जाता है खरगोश, वो किसी दूसरे के पिंजरे में जाके बैठ जाता है डब्बे में, अगर उसने बच्चे दिए हुए हैं तो वो उसको एक्सपायर कर सकता है। मतलब वो भी ये एक रोमर है कि जी मेल बच्चे खा जाता है, फीमेल बच्चे मार देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ खरगोश जब डर के जाता है तो अपना जोर से पंजा जमीन पे मारता है, उससे दबने से बच्चे एक्सपायर होते हैं। और वो किसी भी वजह से हो सकता है, आप गुजरे हैं तो वो अचानक से कमजोर दिल ढार के भागेगा और अपने उस बास्केट में जाके बैठेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज इसमें कोई नहीं। आप जमीन पे रखें, चाहे पिंजरे में रखें, पिंजरे में आपकी मैनेजमेंट आसान हो गई, आप बच्चों को देख सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सफाई करनी सारी है। चीजें सफाई छोटे एरिया को करनी होती है आपने, बिल्कुल, तो ज्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है उससे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है, अब टेक्निकली एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। इनकी बेहतरीन और सस्ती खुराक कौन सी? आप अगर एक छोटे मैं लेवल पे लेके जाऊं तो घर के जितने भी आपके बच्चे कुछ सब्जियां हैं, रोटी है, ये सबसे बेसिक सबसे सस्ती खुराक। रोटी भी खा जाते हैं, रोटी खा लेते हैं, फिर रोटी में फाइबर होता है जो बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ऐसे डायरेक्टली टुकड़े डाल दें, रोटी टुकड़े डाल दें वो खा लेगा। ठीक है। सख्त से सख्त तरीन जो होगी आपकी रोटी, वो भी ये खा लेगा। सूखी हुई जो रोटी है, बासी वो भी खा लेगा, वो भी खा लेगा। सेहत के लिए अच्छी, कोई मसला नहीं, क्योंकि फाइबर उसमें बहुत अच्छा होता है और फाइबर इसको जरूरत पड़ता है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जब आप घर की बची कुछ सब्जियां वगैरह दूसरी तीसरी चीजें जब इसको डालते हैं तो इसकी सेहत मजीद जो है वो अच्छी रहती है, बेहतर हो जाती है। ये एक हो गया बेसिक। ठीक है। इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं कि कोई बिजनेस पे आगे करना चाह रहे हैं, उसमें जब आप आते हैं तो जो गांव के एरियाज में रहने वाले लोग हैं उसके लिए तो ये फार्मिंग इंतहाई आइडियल है। अच्छा। क्योंकि आपके पास सब्ज चारे की वाफर मिकदार मौजूद होती है। सब्ज चारा कोई भी गंदम, मकई, बाजरा, और अगर टॉप 1 में कैलकुलेट करें तो लूसन, आपके पास अगर जगह मौजूद है थोड़ी बहुत तो उसके अंदर आप लूसन लगाएं 5 साल वाला, तो आपके सारे झंझट खत्म। आपने ये लूसन लगाया हुआ है या? जी, ये लूसन है, ये 5 साल के लिए है, तो ये दूसरा साल इसका चल रहा है, बस काटते हैं, पानी दे देते हैं। इसमें 21-22% प्रोटीन है, 21-22% प्रोटीन है, तो आपके सारी चीजें वहाँ पे इसके साथ लूसन डालें तो कोई एडिशनल चीज डालने की जरूरत नहीं। कोई दूसरा सब चाह रहा है उसके साथ कोई वंडा या कोई आटा या ऐसी कोई देखिए, इसको चाहिए 20% प्रोटीन। अच्छा। जब आप इसको लूसन के अलावा कोई चीज देते हैं, जैसे मकई है उसके अंदर 14% प्रोटीन है, ठीक है। गंदम है ये 7% प्रोटीन रखती है, ठीक है। तो उस 20 के लेवल को पूरा करने के लिए फिर आपको एडिशनली ड्राई मैटर में कुछ भी देना पड़ जाएगा। उसमें मोस्टली हम काफ स्टार्टर जो है वंडा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो 30 से 50 ग्राम पर रैबिट जो है वो रेडीमेड मिलता है, रेडीमेड मिलता है। काफ स्टार्टर खुद बना सकते हैं, खुद बना लें, सोयाबीन, गंदम, मकई, इस तरह के कुछ हम फार्मूलेशन हम दे देते हैं, मिक्स करें, आप खुद बना लें। अच्छा, ठीक है। वो पायलट्स की शेप में ये खा जाते हैं? पैलेट्स की शेप में खा लेगा, पाउडर शेप में खा लेगा, क्रश फॉर्म में खा लेगा, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रैबिट पेयर मंथली या ईयरली कितने खर्चा हो जाता है खुराक का? देखें, कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल लेवल पे अगर बात करें तो एक रैबिट आपका तकरीबन जो है वो पर डे 1 रुपए की कॉस्ट पे जाता है, अगर आप उसको लूसन डालते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ लें कि 1 एकड़ जो जमीन है वो तकरीबन आपका 500 से 700 खरगोश पालती है। अच्छा, किस क्वांटिटी में? 24 आवर्स में किस क्वांटिटी में, वजन के हिसाब से? देखिए, सब्ज चारे की क्वांटिटी आप पमाइश नहीं कर सकते, उसकी वजह है कि किसी टाइम के ऊपर उसके अंदर वो खुश्क है, किसी टाइम के अंदर वो ज्यादा पानी। रफली सा एक आइडिया, अगर ड्राई मैटर में काउंट करें तो 200 ग्राम पर डे एक रैबिट खाता है। अच्छा, बहुत कम खाता है जी। ये उसकी पर डे की, और एक ब्रीडर रैबिट की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर उसकी एज कम है तो वो 20 ग्राम से स्टार्ट होता है और 6 महीने की उम्र में जाके वो मैक्सिमम 200 ग्राम पर डे वो खाएगा, खुश्क जो चारा है। अच्छा, आप कहते हैं 20% प्रोटीन लेवल आपने मेंटेन करना है, चाहे सब से दें चाहे खुश्क से दें, जिस तरह से मर्जी है, जिस तरह भी 20 आपने मेंटेन करना है। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया, खुराक का इतना खर्चा नहीं है। हाउसिंग का आपने बता दिया, केज बेहतरीन ऑप्शन, खुले में भी रख सकते हैं, साफ सफाई के, बीमारियों के मसले ज्यादा होंगे उसमें। अब आगे तीसरी चीज बीमारी, इनको बीमारी कौन कौन सी आती है? क्या इनकी मेडिकेशन महंगी है, सस्ती है? बहुत सारी मतलब पेचीदा है, 20 इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं। जो सबसे आसान तरीन अल्फाज में अगर बताऊं तो वाहिद एक खरगोश है जिसके अंदर वायरल डिजीज नहीं है। अच्छा, ये मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे मुर्गियों में कोई आए सुबह 50 मरी पड़ी है, 100 मरी पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, आप बड़े जानवरों को ले लें, गाय भैंस है, उसके अंदर भी जैसे अभी पिछले दिनों वो स्किन की प्रॉब्लम आई थी तो पूरी भैंसें लोगों की एक्सपायर होना शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। ये वायद है, कभी भी एक टाइम में पूरा फ्लॉक आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है।
जब भी फ्लॉक डिस्टर्ब होगा ह्यूमन एरर उसमें शामिल होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना नेग्लिजेंस होगी, नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं शामिल होगी, अदरवाइज ये वायरल डिजीज से एक्सपायर नहीं होता। सही। इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियल के अंदर जो है हम प्रिवेंशन यूज करते हैं, ट्रीटमेंट तक जाता ही नहीं है रैबिट। ठीक है। मतलब इसको कॉक्सी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लिवर टॉनिक महीने में थोड़ा बहुत यूज करवा दिया, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी आती है, उसमें भी अगर आपकी अच्छी खुराक है वो भी खत्म हो लिवर टॉनिक खुराक के जरिए खुराक में मिक्स करके उसमें पानी में मिक्स कर देते हैं, वो यूज कर दिया जाता है। थर्ड जो आपकी जो बेसिक चीज़ है, जो बीमारी है सबसे जो ज़्यादा जो फार्म को डिस्टर्ब करती है, वो है स्कैबीज। ये क्या चीज़? ये कानों पे, नाक पे, पंजों पे खरगोशों को खारिश आ जाती है, जिससे खरगोश को तकलीफ होती है, वो कमज़ोर होता है और वो मोर्टेलिटी में चला जाता है। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब एक खरगोश से दूसरे में जाती है। इसलिए अगर आपके एक खरगोश को ये लगी हुई है, अगर आप उस खरगोश को सेपरेट करके डिसइंफेक्ट कर देते हैं जगह को, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपके फार्म से ख़त्म नहीं हो सकती, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर लें। इसके अलावा खरगोश फार्मिंग में कोई और डिजीज नहीं है जो इनकी मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कोई नुकसान या मसला जो आपके इस 8 साल के एक्सपीरियंस में आया हो, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो? नमी। हाँ, नमी। देखें, सावन का जो महीना है 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक, अगर आपने इन 2 महीनों के लिए अपने खरगोश को तैयार नहीं किया तो इस मौसम के अंदर आपकी जो फार्म की लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा। अगर वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन के अंदर खरगोश को लंग्स के प्रॉब्लम आते हैं। खरगोश का जो फेफड़ा है वो नमी बर्दाश्त नहीं करता। मतलब खुली ओपन हवादार जगह हो, हवादार वेंटिलेटेड आपका इलाका है, एरिया है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, खुराक आपकी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी आपने उसकी बहुत अच्छी तैयार की है, इन 2 महीनों के लिए आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन के लालच में, लोग क्या करते हैं अप्रैल मई के अंदर भी इससे मेट करवा के बच्चे लेने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रोडक्शन तो कमो बेश ले ही लेते हैं, लेकिन मादा कमजोर हो जाएगी, उसके बाद ये खाना पीना कम कर देगी क्योंकि आगे गर्मी में ये कम खाता है। अच्छा। इम्यूनिटी कमजोर होगी और 15 जुलाई से 15 सितंबर के दरमियान फिर आपके पास रैबिट्स में मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। नए बंदों को आप क्या समझते हैं आना चाहिए? देखिए, नए बंदों को हमारा फार्म अब जो चीजें ट्रेन कर रहा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनली जो चीजें कर रहे हैं, हमारा फार्म फ्री ऑफ कॉस्ट हर फार्मर को 3 दिन की ट्रेनिंग देता है। सही है। ये उसके लिए बेसिक चीज आसान हो गई कि यार सीखने, कोई भी कारोबार आपका इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है कि पहले सिखाया जाए फिर कराया जाए। हमेशा पहले आप करते हैं, नुकसान उठाते हैं, फिर सीखते हैं, पहली बार सिखाते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है। हमारा फार्म प्रोफेशनली आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देता है। सही है। जिसके बाद आपको कहते हैं कि हम खरगोश फार्मिंग करें, पहले ना करें। जिससे क्या होगा कि फार्मर बेसिक तमाम चीजें सीख के अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए रेडी होता है। उसके बाद अब हमने दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है कि आपने खरगोश को बेचना कैसे है। अच्छा। आपके अपने शहर के अंदर आप खुद फार्मिंग करें, आप उधर ही बेचेंगे, गाइड हम करेंगे, नहीं बिकता इधर आके ले जाएं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसके बाद भी कहता है कि फार्मिंग नहीं करनी है, तो ये उसके दिमाग का कीड़ा है, फार्मिंग में मसला नहीं है। सही है। ठीक है, तो मतलब ट्राई करना चाहिए। आई सजेस्ट के नए जो बंदे हैं छोटे पैमाने पे, इवन 1-2 पेयर से इसमें इतनी माशाल्लाह बढ़ने की सलाहियत है तो ग्रो कर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पेयर साल में कितने बच्चे दे देता है? एक पेयर, एक मादा की हम बात करें, कम से कम जो है वो 30 बच्चे सालाना दे रही है। अच्छा, इस पे भी मुख्तलिफ रहा है, कोई कहता है 50-60 देगी, कोई 70 देगी, कोई कहता है कम से कम की बात है। देखें, अगर आपने न्यूजीलैंड वाइट की मादा रखी हुई है, नहीं, एक एवरेज ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, 30 दे देगी। गोरा कहता है कि 6 ऑन एवरेज काउंट करें, ये हो गया स्टडीज के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड बात। 6 को कैलकुलेट करें, कम से कम जो क्लच हैं वो सालाना 5, ज्यादा से ज्यादा 8, ठीक है, ये इसका ऑन है। तो अगर हम 5 को कैलकुलेट करें तो 6 5 या 30 बच्चे आपके सालाना बनते हैं। न्यूजीलैंड वाइट की मादा है 9 से 12 ऑन एवरेज दे रही है, हम 9 कैलकुलेट करते हैं। न्यूजीलैंड वाली जी, मेरे फार्म का आप अगर ज्यादा डिमांड भी आई बिलीव इसी की है, ये बड़ी नस्लों में आता है, तो ये 9 से 12 बच्चे दे रही है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, पेपर वर्क कंप्लीट है, उसके ऊपर आप चेक करें, कोई मादा 9 से नीचे नहीं है। ठीक है। 9 को अगर देख लें आप, 4 क्लच साल के लगा लें कम से कम, तो 9 चौका 36 आपका ये भी जो है वो ऑन एवरेज आ जाती है। एक बच्चा पैदा होता है, किस उम्र में जाके क्रॉस होता है और बच्चा देने शुरू कर देता है? मैं आपके इसमें 3 सवाल ऐड कर देता हूँ, जो आप इसमें दे देता हूँ। एक बच्चा जो पैदा होता है 6 महीने में, तो वो जाता है दोबारा, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होती है कम से कम, ठीक है, 6 महीने की उम्र में वो ब्रीडिंग शुरू कर देगा। इसके अलावा एक बच्चा 3 माह की उम्र में आपका स्लाटर होता है,
2 kg वेट गेन करता है। स्लाटर है जिसकी 3 माह है तो 2 किलो का तैयार हो जाएगा, उसको आप स्लाटर कर सकते हैं। ज़िबा भी करना उसका 3 महीने में। वो गोश्त किस हिसाब से बिकेगा ज़िबा? ज़िबा वाला जो गोश्त है जिंदा बेचेंगे 800 रुपये किलो, मुझे बेचेंगे 700 रुपये किलो, 100 रुपीज़ फार्म का प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर आप गोश्त की बात करें तो 1600 रुपये किलो जो है वो इस वक्त गोश्त है इसका साफ। सही। और उसके अंदर आइडियल है 6 महीने की एज में क्रॉस करा देना चाहिए। इसकी साइज पे कुछ नहीं होगा कि कुछ भी कई फर्क लोग पड़ेगा। मैंने सुना कहते हैं साल का कम से कम कराना नहीं, चाहिए, नहीं, ये- उसकी अपनी ग्रोथ नहीं होती। नहीं ये ऐसी ये टोटल फेक चीज़ें हैं। 6 महीने का आइडियल है। आइडियल 6 महीने है। आप देखते हैं कि आपका खरगोश कमजोर है, उसको 1 महीना और देख लें, और दे। बस 7 महीने उसमें लेके चले जाएं तो मोर देन इनफ है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि 1600 रुपये किलो जो हम यहाँ पे गोश्त सेल करते हैं, इसके अंदर फैट्स जो हैं वो 0 है, नेचुरली फैट नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 0 अच्छा। फैट्स हैं, सोडियम फ्री है। शुगर के पेशेंट्स, इसके अलावा हार्ट्स के पेशेंट, हाँ। इसके अलावा जो जितने भी आपका जो कार्डिक्स के साथ जुड़ा हुआ मरीज है उनके लिए अच्छा गोश्त खा, नॉर्मली उनको बेहतरीन गोश्त है। मना हो जाता है, बेहतरीन है सर। ये वो खा सकते हैं। और मेरा एक, मैं इसमें छोटी सी आपको अपने साथ एक दोस्त है मेरा, वो आया था, वो डायबिटिक पेशेंट थे, तो उसने कहा कि इसको खाने से कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये उसकी अपनी जुबानी है। सही है। तो मैंने कहा कि जितना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है टिका के खा लो। अच्छा, उसने अराउंड कोई आधा किलो के करीब जो है ना वो अकेले खाया है। सही है। अगले दिन उसने मुझे कॉल किया है कि मलिक साहब यार मुझे ऐसे लग रहा है कि जिसी ने मुझे जो है वो बूस्टर डोज मेडिसिन की दे दी है। अच्छा, मतलब ये एनर्जी ताकत फील कर रहा इतनी है। ज्यादा है हाँ। और डाइजेस्टेबल है। सही है। आप घी किलो खा जाएंगे तो उससे आपको मोशन लगेंगे, लेकिन नहीं इसको ना। आप आधा किलो 3 पाव खा जाएं आपको कुछ टेस्ट तंग में नहीं कैसा है? चिकन जैसा है? सेम लाइक चिकन। फार्मिंग मुर्गी। अगर आप जो है वो चिकन को खाते हैं तो उसको छोड़ के ये खाना शुरू कर दें तो आपको चिकन में स्मेल महसूस होगी, इसमें नहीं होगी। अच्छा, जबरदस्त है, फिर तो अच्छा है। अगर कोई आपसे परचेज करना चाहे 3 महीने के, 6 महीने के या अडल्ट जो बच्चे देने पे नजदीक है, क्रॉस हुई हुई, इनके क्या प्राइस है? देखिए नॉर्मली जो हमारा इस वक्त जो प्राइस शेड्यूल चल रहा है, हम लोग 3 फेजेस में इसको डिवाइड नॉर्मल वाली प्राइस बताइए। नॉर्मल बिल्कुल जो ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद है, पिछले सही। 3 साल से वही चल रही है। हाँ, सही। मजे की बात यह है कि हर चीज इंक्रीज हुई है, हमने प्राइस को वहीं पे स्टेबल रखा हुआ है। ठीक है। हम लोग जो घरेलू लोग हैं जो अपने घर की जरूरत के लिए लेबर लेना चाहते हैं, उनको हम देते हैं 21 पीस, 14 फीमेल्स और 7 मेल, ये एक ठीक। सेट बना के हम दे देते हैं। सही तो है। ये 94,500 रुपए का है। इनकी ठीक एज है? क्या होती है? 3 माह, Sorry, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, 3.5 माह का बच्चा। 94,000 का आप एक देते हैं। ये एक उसके लिए सेटअप लग जाता है। उसमें अगर वो केजेस भी साथ लेता है तो उसकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ये एक वो जो घर की बची खुची चीजों से उनको पाले सही। और अपनी जरूरत को पूरा कर लें। सही। उसके बाद बेसिक कमर्शियल है, उसमें हम 60 पीस देते हैं। उसमें प्राइस थोड़ी सी मजीद नीचे आ जाती है, 2,40,000 के अंदर 60 पीस मिलते हैं और फीमेल्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है, मतलब 3 फीमेल्स के साथ 1 मेल, 45 फीमेल्स और सही। 15 मेल जो है वो देते हैं। सही है। ये 2,40,000 में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके आगे थर्ड है, फुल कमर्शियल को करना चाह रहा है, सेटअप लगाता है, तो उसके अंदर भी हम उसको फिर मजीद प्राइस नीचे आ जाती है, 500 पर पीस, तकरीबन 3.5 लाख रुपए के अंदर जो है वो 100 पीस उसको मिलता है, जिसमें 75 जो है मादा हैं और 25 उसको साथ जो है वो मेल दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है। बाकी कोई 1 पेयर ले, ठीक है, ले 1 पेयर लेता है 25,000 रुपये का है, ठीक है। अगर जो बच्चों का 1 पेयर लेता है वो 8,000 रुपये का है, जो 2 से 3 माह के हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को कोई स्पेशल ऑफर देंगे आप? वैसे हर दफा दी जाती है, लेकिन इस दफा बारिश भी देखें, अच्छी बात की है, माशाल्लाह बारिश भी शुरू हो गई है। इसमें नॉर्मली तो हमारा जो है वो चलता है कुछ ना कुछ, लेकिन इस दफा ईद पे हमारे पास स्टॉक कम है, हाँ। तो हमने ऑफर क्लोज कर दी थी, लेकिन अब आप आए हैं तो उसमें मैं थोड़ी सी जो है वो ऐड कर देता हूँ कि जो लोग भी आपकी वीडियोस देखते हैं और वो अगर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो ईद के तीसरे दिन तक, ठीक है, वो आज से लेके ईद के तीसरे आज से लेके ईद के तीसरे दिन तक सही। हम लोग नॉर्मली जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल देते हैं 25,000 रुपए की और 5,000 रुपए का मेल देते हैं। ठीक है। ये 30,000 रुपए की नॉर्मल प्राइस है जो कि हर फार्मर को पता है। ठीक है। इसको हम लेके आएंगे 20,000 के ऊपर, 20,000। 20,000 रुपए में वो हमसे वो मादा ले ले जो उसके पास जाके बच्चे दे देगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ उसको 15 का कर दें 5 का मेल कर दें, 20 का जोड़ा कर दें, जी ठीक हो गया। ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही बनाई है कि 15,000 की फीमेल है, कोई कहता है मुझे 2 या 3 मादा लेनी है, हाँ। 4 मादा लेनी है, 15,000 रुपए की फीमेल। अब आपकी वर्डिंग के ऊपर हम स्टैंड करते हैं। ठीक है।
मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिए कहीं? नहीं, ये और आज जितने फार्मर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको हमारे फार्म की प्राइसेस का पता है। सही है। तो जो इस वीडियो के रेफरेंस से आएगा, इसके अलावा भी जो जहाँ तक ये आवाज़ आ रही है, 15,000 रुपये की पर फीमेल, 5,000 रुपये का पर मेल, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी उनके पास जाके कितने दिन, मतलब महीने? अराउंड 10 डेज 15 डेज, सारी अप्रैल की प्रोडक्शन है हमारे। प्रेगनेंसी पीरियड इसका 28 दिन, 30 डेज है। 30 डेज, हाँ। मतलब उनके पास 15-20 दिन में जाके बच्चे दे देती ये है। अप्रैल के अंदर एवरेज आप कहते हैं न्यूजीलैंड 9 बच्चे देती है। जी 9 बच्चे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फ्लॉक में जितना भी स्टॉक है वो कम से कम 7 और 12 तक जा रहा है। और ये हमारी एक फ्रेंचाइजर है जो चकवाल से हैं, उनके पास एक मादा ने 15 बच्चे दिए हैं और सारे के सारे पल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी का दूध पीते हैं शुरू में? उसी का दूध पीते हैं। 20-25 दिन तो मादा ने पालना है। इतना मादा का दूध होती है 12-15 बच्चों को खिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। बेहतरीन जो है वो ज़्यादा बच्चे देते तो थोड़ी सी केयर बढ़ जाती है, फीड उसकी बढ़ा दें। सही है। तो वैसे नॉर्मली 10 तक तो उसको कोई परेशानी नहीं है नॉर्मल फीड के ऊपर। और जो 6 महीने की एज का पेयर है वो कितने का देंगे? ये जो ब्रीडर जिसको कहते हैं, ये 6 महीने प्लस में चलता है। ठीक है, 6 महीने से जो नीचे है वो उसमें आ जाता है बच्चे, अडल्ट आते हैं 2 से 3 माह के। वो नॉर्मली हम लोग जो सेल आउट करते हैं वो 8 से 9,000 रुपये का पेयर है। वो भी अगर कोई इस वीडियो से अगर परचेजिंग करेगा, ठीक है, तो वो 6,000 रुपये में उसको पेयर हम भिजवा पेयर दे देंगे जी। उसमें वो उनके पास जाके कितने दिन बाद क्रॉस हो जाएगा? सितंबर में प्रोडक्शन शुरू करेगा। तैयार जो है वो 7वें महीने में हो जाएगा। जिनकी उम्र 6 महीने की है, अभी क्रॉस होने के काबिल है, तो वो अभी क्यों नहीं क्रॉस होके बच्चे देते हैं? वो तो ऑलरेडी हमने प्राइस भी मेंशन कर दी है कि जो 6 महीने ये ब्रीडर में आ जाता है ना, जो 6 महीने प्लस मतलब उनकी प्राइस आपने क्या बताई जिनकी? 15,000 फीमेल और 5,000 मेल, और वो मेट भी होगा। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। और 3 महीने वाले उनकी आप कहते हैं 7,000? हाँ, वो हम लोग 8,000 रुपये का सेल करते हैं। तो जो अभी ऑर्डरिंग करता है ईद के तीसरे दिन तक, तो उसको 6,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा, जिसमें 4,000 रुपये की फीमेल है और 2,000 रुपये का मेल है। मेल, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये कैमरा क्रॉस करते हैं, एक एक बता दें हमें कौन कौन सी नस्ल है, एक एक उठा के हमें दिखा दें। जी, ये सबसे पहले फैंसी में आ जाते हैं। तो ये चेकर्ड जायंट ब्रीड है जो कि पेट पर्पस के लिए पाली जाती है और 7 kg तक इसका वेट जाता है। इसका क्या अडल्ट पेयर कितने? ये क्योंकि फैंसी है, इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। ये 50,000 रुपये का पेयर बच्चों से स्टार्ट होता है और फुल ब्रीडर जो है ये आपको 1,40,000 और 1.5 लाख तक जाके मिलता है। ठीक है, इसी तरह आ जाएं तो ये एक जर्मन जायंट ब्रीड है। ये तो बहुत बड़ा है, इसका वेट क्या होगा अभी? जी, ये इस वक्त तकरीबन जो है वो 6 kg के पास है। और ये हमारे पास जो इस वक्त पैरेट्स इसके मौजूद हैं। ये पेयर भी सेम चेकर्ड जायंट की प्राइस में है। 50,000 रुपये का पेयर जो है वो बच्चों का है और 1,40,000 जो है वो इसका ब्रीडर पेयर है। 1,40,000। और ये कौन सी है? जी, ये मीट ब्रीड है, इसको चिंचला ब्रीड बोलते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, ब्राउन है, ब्लैक है और सिल्वर है। ये भी न्यूजीलैंड की प्राइस है? जी, ये सेम मीट की प्राइस में, क्योंकि दुनिया में इस वक्त 3 जो नस्लें हैं वो फेमस है। और ये भी चिंचला में आ जाता है। ये भी एज मेरे ख्याल 3 महीने? जी, तकरीबन 2 महीने का है ये। 2 महीने का जी, 1 किलो वजन में होगा इस वक्त। ये भी सेम प्राइस में? सेम प्राइस में। अच्छा, इसके कान जो गिरे हुए हैं ये दिखाइए, ये बड़ा सबसे अलग है माशाल्लाह। पेट पर्पस के लिए हैंड टेम होने वाली ब्रीड है। अच्छा। जो घर में स्पेशली फीमेल्स इसको पालना पसंद करती हैं, हैंड टेम हो जाता है। ये फुजी लूप के अंदर आता है और ये ब्लू आइज में है, रेयर ब्रीड में आ जाता है। तो इसका पेयर अराउंड जो है वो 25,000 में सेल आउट होता है और ब्रीडर जो है वो 60 to 70,000 में ये सेल आउट होता है। और ये ब्राउन जी, ये तो कोई देसी सा लग रहा है जैसे। नहीं, ये इसको ये जितनी भी है ना, इसको पाकिस्तान में फ्लैमिश और जो बायोलॉजिकल नेम है इसका वो है चिंचला, जिसमें 3 कलर हैं, ब्राउन, ब्लैक और ये सिल्वर। ठीक है, इसके बाद जो मीट की ब्रीड है वो है ये न्यूजीलैंड वाइट, जो इस वक्त वर्ल्ड फेमस भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग इसी ब्रीड की जा रही है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो मीट वाली ब्रीड है वो है ये कैलिफोर्निया। अच्छा, इसके कान 2 पाँव का कलर? जी, ये काला गर्मियों में सफेद कर जाएगा और सर्दी में ये काला करेगा। ये पैटर्न चेंज करता है अपना। इसके अंदर ये क्वालिटी भी है। तो ये मीट के लिए 3 दुनिया की फेमस नस्लें हैं। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड आता है, दूसरे पे कैलिफोर्निया आता है और तीसरे पे जो है वो चिंचला। आप नए फार्मर क्या सजेस्ट करेंगे? न्यूजीलैंड वाइट से करें? मैं नए फार्मर को अगर ज्यादा क्वांटिटी हो तो तीनों डिवाइड करके हम लोग देते हैं। सही। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं पे फ्लैमिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं पे न्यूजीलैंड और कहीं पे कैलिफोर्निया। तो जो आपके पास बहुत अच्छी परफॉर्मस दे रहा हो आप उससे आगे एक्सटेंड कर लेंगे। परफॉर्मेंस से आपने क्या मुराद है? वेदर का, जगह का, एनवायरनमेंट? वेदर का, इन तीनों खरगोशों की जो हर एरिया के लिहाज से, उस जगह के लिहाज से अपनी अपनी अलग जो है ना वो परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया।
جس وجہ سے جو ہے وہ ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ تجرباتی فیز سے جب خرگوش گزرتا ہے اور فارمر بھی گزرتا ہے تو اس کے پاس کم سے کم یہ ضرور اس کو پتہ ہو کہ اس نے آگے کون سی نسل پہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ چیز ہے. ماشاء اللہ. کائنڈلی اپنا نمبر بول دیجیے گا ایک دفعہ, کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے. جی, اگر کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا جو واٹس ایپ کے اوپر نمبر بھی موجود ہے اور کال پہ بھی یہی نمبر ہے 0332 555 8762. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں 0332 555 8762. یہ میرا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کریں, کال کریں, آپ کو مکمل گائیڈنس بھی دی جائے گی اور ہر طرح سے جو ہے وہ آپ وہ اس کے حوالے سے آپ فیسیلیٹیٹ کیجیے گا. کائنڈلی یہ ہے کہ نیا فارمر آپ کو, ہمیں بھی ایسی کال آتی ہے 100-200 کالز آئیں گی, اس میں شاید کسٹمر آپ کے 5 ہوگے, مگر جو 195 ہے نا ان کو بھی گائیڈ کریں. جب بندہ گائیڈ کرنا بتانا شروع کرتا ہے, آج نہیں نا, آپ کا بھی فائدہ ہے فیوچر کے, وہ آپ کے کسٹمر بھی ہیں اور کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا. بندوں کو بس نالج انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, کئی کام ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ان کو وسائل بھی ہوتے ہیں سیٹ اپ, مگر نالج نہ ہونے کی وجہ. اور لوگ میں نے دیکھا ہے جو اسپیشلی کئی پرانے فارمر ہیں نہیں بھی بتاتے, نالج ہوتی بھی ہے بتاتے نہیں ہیں, اور کچھ چاہتے بھی ہیں چاہ کے ایکسپلین نہیں کر پاتے. بالکل. دیکھیں ماجد بھائی, کیونکہ اللہ پاک نے دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کیونکہ کافی ٹائم ہم لوگ جس جاب میں رہے ہیں اس وجہ سے ایکسپلین کرنا یا اگلے کو ٹیچ کرنا زیادہ آسان ہے میرے لیے. اور ابھی تک جو ہے وہ بیسیکلی اس فارم کی سکسیس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک دن میں 200 کالز بھی آ رہی ہیں تو میں ساری کی ساری کالز کو اٹینڈ کر کے ان کو پراپر گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے.